فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين আজকে আমরা এখানে অনেক আসলাম আলোচনা করার জন্য, তাই না? এর মাঝে দেখে আমাদের যে মহামারী চলে গেল, এর মধ্যে আমাদের পরিচিত অনেকে চলে গেছে দুনিয়াতে, আর অনেক কারণ আমাদের বন্ধ ছিল। তো আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আবার দুনিয়াতে স্বাভাবিক জীবনযাপন আমরা করতে পারতেছি। এর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিন জারি রাখা, তাই না? দিনের পর আলোচনা করা, দিন চর্চা করা, দিন শিক্ষা করা, দিন মানা, এটা আবার নতুনভাবে ইনশাআল্লাহ শুরু হয়েছে এবং আমরা সবাই আবার আলহামদুলিল্লাহ এই রমজান আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমরা সবাই রমজানের তারাবিগুলো আমরা পড়তে পেরেছি, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন আলোচনা এখানে নতুন কারা আছে, মানে পুরান কারা আছে, হাত উঠাবো যারা আমাকে আগে দেখছেন 3 বছর আগে, তো পুরান অনেক। দেখেন এর মধ্যে কিন্তু অনেক ভাই আছেন যারা আরো পুরান। এখানে আমাদের ইমাম সাহেব বা আপনারা বলছেন আমাকে আসতে, আমি কিন্তু মানে আমি কিভাবে আসবো আমি ভাবতেছি শুধু এটাই, আমি ওই ধরনের কোনো আপনার পরিচিত কোনো বক্তা না, তাহলে কেন আনা হচ্ছে, আমি বা কেন আসলাম? তো আমি একটা চিন্তা করি, অন্তত একটা কথা বলবো যে আমি সবাইকে ভালোবাসি, আপনারা সবাইকে ভালোবাসেন, সবাই আমাদের সবাই সবাইকে। তো বলতে হবে এই একটা কথা, আমি চিন্তা করি যদি এতটুকু কথাও যদি কেউ কাউকে বলে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, কার জন্য? এটা বড় ইবাদত, জানেন? এটা কি বলে? বড় ইবাদত। একটা ঘটনা হাদিসে, সহিহ হাদিসে আসছে যে একজন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, বন্ধু মুসলমান, কিন্তু কেন যাও? অমুকের সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে যাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ওই ফেরেশতা লাফালাফি করতে, তোমাদের কি হয়েছে আজকে? বলছিলেন ওই যে অমুক জায়গায় একজন আর তোমার একজন প্রিয় বান্দা আরেকজন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, শুধু আর কোনো উদ্দেশ্য না, বাস জিয়া তোমার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ হলো, মনটা ভালো লাগবে, তো তুমি সাক্ষী দেবে, আমি ক্ষমা করে দেবো। এই জন্য আমি যেটা মানে বলতে চাইতেছি যে আমরা এখানে আসছি শুধুই এখানে আপনাদের মহব্বতে ভালোবাসায়। তো এখন আজকের আলোচনার মধ্যে আমি দুটা পয়েন্ট বলবো যেটা আপনারা আমল করতে চেষ্টা করবেন। এই আজকের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ দুটা কথা, এটা আমি লাস্টে হয়তো আবার বলবো বা এখন বলতেছি, যাদের মনে থাকবে চেষ্টা করবেন এটা আমল করতে। একটা কথা হলো যে আমরা আমাদের জীবন কিভাবে পরিচালনা করব, সবকিছুর মূল হলো আমরা গুনাহ ছাড়ার চেষ্টা করবো। বলেন আমরা কি করবো? গুনাহ ছাড়া গুনাহ করবো না, এই চেষ্টা করতে পারি ইনশাআল্লাহ। কিসের গুনাহ বলি? চোখের গুনাহ, জুবানের গুনাহ, কানের গুনাহ, অন্তরের গুনাহ। হ্যাঁ, অন্তরের গুনাহ কি? আমরা কল্পনা করি আজে বাজে, কারোর সাথে ঝগড়া হয়েছে, তাকে আমি কিভাবে ঘায়াল করবো, এই কথাগুলো সাজাই। হ্যাঁ, না তার সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না, এগুলা কি? অন্তরের গুনাহ। আরো অনেক যা আছে, কি বল, মনে মনে পরিকল্পনা করা, বা আপনার আমি ডিউটি করতেছি, ডিউটি আজকে যাবো না, ফাঁকি দিব ওখানে, এইসব হলো অন্তরের গুনাহ। আর জুবানের গুনাহ কি? জুবান দিয়ে আমরা কষ্ট দিই মানুষকে, গীবত করি, গালি দিই, আছে না? এগুলো জুবানের গুনাহ। কানের গুনাহ কি? আপনারা যে গান শোনা, আদাবাদ এগুলো করা। আর চোখের গুনাহ কি? চোখ দিয়ে দেখা। তো এখন আমাদের মুরব্বী উনি আছেন জানেন, আরো যারা আছেন তো জানেন, কিন্তু মুরব্বী যারা বয়স্ক ওনারা জানেন। ছোটবেলায় একটা সময় ছিল, আপনি টিভি সিনেমা দেখবেন, নাটক দেখবেন, এগুলোর জন্য একটা প্রোগ্রাম করে আপনাকে যেতে হতো, মা বাবার মারে ধরে, এরকম অনেক কিছু ছিল, শাসন ছিল। কিন্তু এখন প্রত্যেকের হাতে কিন্তু একটা মোবাইল আসছে। মোবাইলটা কিন্তু আমি মনে করি করোনা থেকেও কি আরো বড় মহামারী।
মোবাইলের গুণ থেকে কয়জন আমরা মুক্ত থাকতে পারি বলেন তো? আমরা ইমো খুলি, এটা ভালো উদ্দেশ্য যে ইমো খোলা তো গুণা না নাকি, কথা বলবো, কিন্তু ইমোতে খারাপ অ্যাডভার্টাইজ আসে না। আমি গতকালকে এই জন্য এই কথা যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি, সৎসঙ্গে সহবাস, অসৎসঙ্গে কি সর্বনাশ। আপনার বন্ধু যে হবে, আপনি যার সাথে সম্পর্ক করবেন, সে যেমন হবে আপনার চলাফেরা কিন্তু তেমনই হবে। আমি একজনের সাথে কাল কথা বললাম, উনি ডাইরেক্ট মোবাইলে ওনার সাথে আমার কথা বলতে হয়, তো আমি বললাম যে দেখো মোবাইল ছোট, আমার বয়স ছোট কিন্তু ভালো আলেন, দেওয়া থেকে বলে আসছে নতুন 3 বছর আগে শেষ করেছি উনি। আমি বললাম যে মোবাইলে কথা বললে পরিষ্কার হয় না, আজকাল এখন সবচেয়ে ভালো সার্ভিস হল ইমো, তাই না বাংলাদেশে ইমো। উনি আমাকে বলে কি দেখেন আমি তো ইমোটা চালাই না, ইমো চালালে গুণা হয়, চোখের হেফাজত করতে পারি না, চোখে মানাইতে পারি না, অজান্তে নিজের অনিচ্ছায় গুণা হয় যায়, এই জন্য আমি ইমো চালাই না। তারা ভালো মানুষ কি দুনিয়াতে আসে না? উনি এখন বর্তমানে কোথায় আছে? এই সারা রমজান উনি একজন হাফেজ আলেম, উনি ঢাকায় আরেকজন আলেমের সোহবতে সারা রমজান ইতিকাফ করতেছে, সারা রমজান। হ্যাঁ, এই আপনার মানে ওই আলেমের এই কাজই হলো শুধু সব পুরো রমজান, ওই যে খানকা বলে না, খানকা চিনেন তো? হ্যাঁ, পিরালি খানকা, ওখানে উনি মেহনত করেন, ওলামায়ে কেরামদের 400-500 মানুষ আছে মেহনত করতেছে। তো ওখানে গিয়ে উনি বলছেন যে এখন এখানে এসে ইমো চালাবো আর এই গুণা করবো, এটা কি না সম্ভব না। তো যাই হোক, মূল কথা আমরা এই যে মানে চোখের গুণা, কানের গুণা, মনের গুণা, এই জুবানের গুণা, এই গুণা থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করতে পারি ইনশাআল্লাহ। সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আজকে কাতারে কত রোজা আসছে? 28। হ্যাঁ, 29 আসবে আজকে, আসবে না 29। বেজুর রাতের একটা সম্ভাবনা এই যে আসতেছে, আমরা বেজুরের কাছাকাছি আছি, এই জন্য যদি লাইলাতুল কদর হয়ে যায়, আমরা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারির আগে আমরা অঙ্গীকার করবো মনে প্রাণে যে হুজুর আমরা ইনশাআল্লাহ সবাই ওয়াদা বলবো, ইনশাআল্লাহ বলবো এই ওয়াদা গুনাহ হবে না, আপনি ইনশাআল্লাহ বলবেন, গুনাহ না করে অঙ্গীকার করবেন, এরপরে যদি গুনাহ হয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই, আবার তওবা করবেন। কথাটা বুঝতে পারছি? অনেকে আমাকে বলে যে হুজুর গুনাহ ছাড়া আবার তওবা আমরা সাথে করি নাই, কারণ করে ফেলি না, এটা কোনো সমস্যা নেই, আমরা অঙ্গীকার করবো, ভঙ্গ হয়ে যাবে, আবার তওবা করবো, আবার তওবা করবো, আবার গুনাহ করবো, আবার চলতে থাকবে আমাদের। তওবা করলে কি হয় জানেন? গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমরা শোনায় গ্যারেজে গাড়ি ঠিক করি না, আবার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আবার ঠিক করি, আবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আবার ঠিক করি। তওবা বললে যে গুনাহটা ছিল ওটা মুছে যায়। যেন আমরা সবাই বলি একটা কাজ, আমাদের 2টা কাজ আমি বলবো, একটা হলো যেটা এখন বলতেছি, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আজকের আলোচনা এটা। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমি এখন বলবো, সেটা হলো যে উলামায়ে কেরামদের মহব্বত ও ভালোবাসা। বর্তমান যুগ ফিতনার যুগ, এই যুগে এমন ফিতনা চলছে যে মানুষকে উলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরানো হচ্ছে। আপনি যদি আলেমদের সাথে সম্পর্ক না রাখেন, তাহলে আপনি কিন্তু একদিন দিন হারা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর এখন যেভাবে মানুষ, আমি রমজানও শুনলাম, একজন আমাকে দেখাইলো, আমাদের বাংলাদেশের একজন, নাম বলে ফেলি, এই নামে গীবত হবে না, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, নাম চিনেন মনে হয়? উনি নাকি এই কথা বলছে যে মসজিদে গিয়ে যদি দেখেন যে আহলে হাদিস ইমাম নাই, তাহলে ওই মসজিদে নামাজ পড়বেন না, ঘরে পড়বেন। কথাটা বুঝছেন? এই কথাটা কি ঠিক না বেঠিক? তা আসতে বলতেছেন কেন? এই কথাটা কি ঠিক না বেঠিক? ঘরে নামাজ পড়লে, মসজিদে নামাজ পড়লে কয় গুণ সওয়াব বেশি হয়? 27 গুণ। यहाँ जो भाई है सब बांग्लादेशी साथी हैं या इंडिया का भी हैं? अच्छा, तो भाई उर्दू बोलते बोलते सीखी हो, हिंदी बोल बने उर्दू साथी कितना जितना भी है बोल दीजिए। उर्दू साथी कितना थोड़ा आप बताओ इंडिया कितना है? तो ये 3-4 है, बाहर भी है ना, 4-5 है, उधर रूम में बैठे हैं। बांग्ला साथी थोड़ा उर्दू समझता है, लेकिन उर्दू वाला बांग्ला नहीं समझता है। तो क्या करना है? क्या करें? थोड़ा उर्दू बात करें क्या? ठीक है, तो बात ये है, 2 काम आज ये वादा करना है, एक है गुनाह नहीं करना, गुनाह को छोड़ना,
اور دوسرا کام ہے علماء کرام کو کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے. تو جو بھائی بولے گا کہ مسجد میں اگر آپ کو وہ امام نہیں ملے گا حدیث امام تو مسجد سے نکال جاؤ، تو یہ علماء کرام سے کیا کرنا ہے؟ دور ہٹانا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کیا بات نہیں ہے؟ اچھا بات نہیں. اور بہت چلتا ہے. اس لیے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک کام ضروری ہے. یہ زمانہ میں علماء کرام سے محبت نہیں ہے تو آپ تو دین سے دور جائے گا، پھر ٹھکانہ کہاں ہو جائے گا؟ جہنم ہو جائے گا. اللہ کا وہ ناراضگی آ جائے گا. اس لیے آج کا جو کام ہے میں پھر بتاؤ، ایک گناہ چھوڑنا ہے. جو بولنے والا ہے اس کو بھی تو گناہ ہوتا ہے نا. اللہ اس کو اور جس سننے والا سب کو گناہ سے بچنے کے لیے توفیق عطا کرے. آمین. ہم سب وعدہ کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ گناہ کو چھوڑ دوں گا. بولے انشاءاللہ. رشتہ دار سے اگر ایسا ہے وہ مٹانا ہے. اس لیے میں بولا محبت. دیکھیے یہ 1.5 مہینہ پہلے گیا شب برات، سب جانتے ہیں نا شب برات. شب برات میں پورا رات عبادت کرے گا، فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ کسی کا غصہ ہے. سمجھ گیا؟ آپ کے ساتھ کسی کا غصہ ہے، رشتہ دار یا تو دوست. یہ سنایا میں لاکھ آدمی ہے، آپ تو نہیں جانتے ہیں نا، تعلق نہیں، وہ نہیں ہے. جو آپ کا دوست تھا پہلے 4 سال 10 سال، اب یہ جھگڑا ہو گیا نہیں، اس کو نہیں پہنچتا ہے. اس کے لیے یا تو کوئی رشتہ دار کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، وہ تعلق کو کٹ کیا، وہ شب برات میں پورا رات عبادت کرے گا. بولتا ہے کہ اللہ کا دربار تک نہیں پہنچے گا. صحیح حدیث ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے میں پہلے ہی بولا کہ میں یہاں آیا ہے صرف کس کے لیے؟ بولے اور یہ محبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، دین کی خاطر. تو جب محبت پیدا ہوگا آپ 1-2 بات سنے گا نا، انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ بات محبت سے سنے گا، اس پر عمل بھی اچھی طرح سے ہوگا. محبت نہیں ہے تو کون آیا ہم نہیں جانتے ہیں، یہ تو آزادی کی طرح نہیں ہے، یہ ماحول حق نہیں ہے، یہ کیا کیا بات کرتا ہے. نہیں، محبت ہے تو بات پھر بس جو ایک بات ہو جائے گا انشاءاللہ اس پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو رشتہ دار کے ساتھ تعلق تھا، کٹ کیا، رمضان میں فائدہ نہیں ہے. سمجھ گیا؟ اتنا ضروری بات ہے. اس لیے میں پھر بولتا ہوں محبت. اور علماء کرام سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے. علماء کرام کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے. اس لیے ہم علماء کرام کو کیا کریں گے؟ محبت کریں گے، عزت بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ میں تو یہاں کئی مرتبہ بولا کہ ہم لوگ جب جانا ہے نا تو ہر اپنا محلہ کا امام صاحب کے لیے 1-2 اتنا چھوٹا بھی ہو ہدیہ لے کے جانا ہے. ہاں، زیادہ پیسہ کی ضرورت نہیں. آپ 10 ریال کا ایک آٹو لیجیے، ایک رومال 20 ریال میں ملتا ہے کہ آپ کے لیے لایا ہے. یہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کو ملنے کے لیے. اللہ خوش ہو جائے گا، یہ میرا گھر کا امام ہے، یہ میرا گھر کے امام کے اتنا محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. یہ میں ایسا بات نہیں کرتا ہوں کہ ہدیہ کے لیے نہیں، یہ صحیح بات ہے. آپ کی بیوی کو، ماں کو، دوست کو ہدیہ دیتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماں کو نہیں دیا، بیٹی کو دیا، آپ کا بہن کو دیا، پھر ماں بولے گا کہ تمہارا بہن یا 50 کلومیٹر دور شادی دیا، ان کے لیے بھی ہدیہ لایا نا، میرا دل خوش ہو گیا. بہن کو ہدیہ دیتا ہے ماں خوش ہوتا ہے نا. تو امام کو ہدیہ دے گا کون خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا نا. یہ میرا گھر کا امام ہے. اس لیے میں بولتا ہوں بس میرا اصل بات یہ ہے، ہدیہ مقصد نہیں ہے، بات ہے محبت کرنا. بس انشاءاللہ آپ کو اللہ مل جائے گا. انشاءاللہ کیا مل جائے گا؟ ایک بڑا بزرگ بولتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ دنیا سے تو ہر انسان جائے گا، مومن بھی جائے گا. مومن جب دنیا سے جائے گا تو فائدہ نہیں ہے. ہر مومن پر ڈر ہے، خوف ہے. لیکن جو اللہ کا ولی ہے ان پر کوئی ڈر نہیں ہے. وہ ان کا حساب کا کوئی ڈر نہیں ہے. وہ حساب آسانی سے ہوگا. قبر میں بھی مشکل نہیں ہے، میزان میں مشکل نہیں ہے، پل صراط میں مشکل نہیں ہے. تو پھر تو انشاءاللہ تو اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ ہوتا ہے کہ یہ دو کام کرنے سے اللہ کا ولی بن جائے گا. سبحان اللہ. کون سا 2 کام؟ میں جو ابھی بولا، گناہ کو چھوڑنا ہے. ہاں ابھی تو روزہ ہے، بہت دن کے بعد بات کر رہا ہوں نا، اس لیے دل میں اتنا رونا نہیں آ رہا ہے. میں یہ جو باتیں جو بزرگ سے میں سنا، وہ جب یہ بات کرتا ہے یہاں سے پانی آتا ہے.
मोहब्बत से करता है, दर्द से करता है, दिल में दुख है कि आए उम्मत तुम गुनाह में मुब्तला है, तुम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह का वली तो नहीं बन सकता है। अल्लाह का वली बनने के लिए दो काम मैं फिर बताओ, एक क्या काम है, दूसरा काम क्या है, नहीं उलमा किराम को मोहब्बत करना। फिर हम भी एक दूसरे को आपस में क्या करना है, मोहब्बत करना है। इंशाल्लाह ठीक है ना। हम आज एक ये भी वादा करना है, यहाँ अगर किसी के साथ किसी का कुछ है तो यहाँ माफ कर देना। बोले इंशाल्लाह सब माफ कर दिया। अगर रिश्तेदार माँ बाप से, भाई से, बहन से, किसी से कुछ झगड़ा है तो उनसे भी यहाँ से जाने के बाद ये नियत करना है कि ठीक है सिर्फ अल्लाह के लिए मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ। हाँ, अल्लाह का वली सिर्फ वो नहीं होता है तो तस्बीह दे के कुर्सी में बैठता है, हजार मुरीद है, सिर्फ वो नहीं है। हम भी अल्लाह का वली बन सकता है। बस ये ना हम कैसे अल्लाह का वली बनूंगा, तो वो बता दिया कि गुनाह छोड़ो और उलमा किराम और तुम आपस में मोहब्बत करो। ठीक है इंशाल्लाह। तो गुनाह में तो बहुत कुछ है, ज़ाहिरी गुनाह भी है। हाँ, ये तो ये है, सुन्नत का लिबास है और सुन्नत को पकड़ना है। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा गया ये बात, और तो बहुत बात लंबा हो जाएगा। तो सामने और यहाँ एक बात है कि अभी रमजान किया, एक महीना तो चला गया, महीना चला गया, मार्केट में ऑफर मिलता है ना, ऑफर सेल मिलता है ना, सेल में आप देखेंगे कि ऑफर का सामान जब खरीदेंगे ना तो फिर जो बिल देगा, बिल के पेपर में लिखता है कि आज आप 200 रियाल का, 300 रियाल का, 150 रियाल का सामान खरीदा, कितना आपको फायदा हो वो लिखता है ना। देखा है, मैं देखा वो सऊदी अरब में कहते ना, हमारा मैदान में है, हाँ उधर मैं देखता हूँ कि आज आप इधर से सामान खरीदा, इतना आपका फायदा हो गया। तो ये आपको नतीजा मिलना मिलता है और सूचना भी है क्या नतीजा मेरा है। तो दुनियादार आदमी उधर मार्केट से सामान खरीद करने के बाद फिर घर में आके बीबी और वो बहुत खुशी से बात करता है कि आज ऑफर में इतने का सामान ले लिया, इतना खुश होता है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, रमजान तो ऑफर का महीना चल रहा है, कोई ये सोचा है कि महीना की खलास लास्ट में हमें हिसाब करना है क्या क्या फायदा हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात तो नहीं सोचा ना, कभी सोचा कभी हिसाब लेना है। ये ईमान का ये भी एक ईमान है कि अभी इतना नेकी किया, दुनिया में हिसाब करता है, तो यहाँ क्यों। मैं आपका खुद बात हो गया, यहाँ एक मैदान में वो बहुत बड़ा है, दुनिया में हर खबर मिलता है। तो उधर मैं जाता हूँ तो कपड़ा लेके आके बीबी के साथ बैठता हूँ, कोशिश से बात करता हूँ देखो तो हिसाब करो फायदा हो गया, वो पेपर में देखता है, फिर में हम तो दुनिया का हिसाब होता है। तो नेक काम का रमजान महीना है, उसका हिसाब भी करना है। ये मैं खुद बता नहीं रहा हूँ, ये मैं आपके पास आने के पहले वो मैं किताब पढ़ के आया। हाँ, क्या क्या बात करो। तो अरबी किताब में ये लिखा है, कौन सा किताब में क्या लिखा है, होता है कि रमजान खाला से अभी एक काम मोमिन के लिए ये है कि पूरा महीना में हम क्या क्या काम किया, क्या हमारा फायदा हुआ, क्या हमारा खसारा हुआ, ये हिसाब करना है। फिर वो किताब में एक मिसाल पेश किया, हम तो मार्केट का, लेकिन वो मिसाल पेश किया मार्केट वाला का, कि मार्केट वाला पूरा दिन के बाद रात में पूरा मार्केट का हिसाब करता है ना, तो हमारा कितना बेचा है, हम कितना फायदा हुआ, खसारा किया है। तो हमें भी सबका हिसाब करना, समझ गया। पूरा महीना में 30 रोजा किया, 12 महीना में सबसे ज्यादा फजीलत वाला महीना कौन सा है, ये। मैं थोड़ा इख्तिसार से बताओ ये महीना क्यों इतना फजीलत वाला महीना है। एक नंबर इस्लाम का 5 बुनियाद है, एक नंबर उसमें एक क्या है, रोजा है। क्या महीना तो और बहुत है, लेकिन अल्लाह ने ये रोजा को रमजान का महीना में क्या है रखा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, याद रखना है, रोजा पहले आया है या रमजान महीना पहले आया है, ये तो आप नहीं जानते हैं, शायद सब चुप हो गया। मैं बताऊँ, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह। इस सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया कि महीना तो 12 है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन, महीना कितना है। तो मैं ये बताओ, आपको ये जानना है, याद रखना है
کہ مہینہ کا جو حساب ہے اور یہ جو نام ہے یہ اسلام کے پہلے سے تھا. سبحان اللہ. سمجھ گیا ابھی؟ اچھا ابھی آئے. تو جب اسلام آیا, اسلام کا ایک ایک حکم ایک ایک مہینہ میں نیا نیا آ رہا ہے. جیسے قربانی تو پہلے نہیں تھا, پہلا طریقہ الگ تھا, لیکن اسلام میں جو قربانی کرنا ہے یہ کون سا مہینہ میں؟ ذی الحج میں. حج پہلے نہیں تھا, حج آیا اسلام میں کون سا مہینہ میں؟ ذی الحج میں حج دیا اللہ نے, اس لیے ذی الحج کا مہینہ کا بھی تھوڑا فضیلت ہے. تو ابھی ایسا ہی اچانک رمضان کا 30 دن کا ایک مہینہ کا روزہ فرض ہو گیا مسلمانوں پر, تو پھر وہ 30 دن کا روزہ اللہ نے ایک مہینہ میں دیا. وہ کون سا مہینہ ہے؟ ابھی بھائی پیچھے کے بھائی تو سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ تو مہینہ رمضان یہ پہلے تھا, بولے میرے ساتھ, رمضان کا مہینہ بولے اسلام کے پہلے تھا. اور روزہ آیا تو روزہ اللہ نے کون سا مہینہ میں سیٹنگ کیا؟ رمضان. اس لیے رمضان مہینہ کا تھوڑا قیمت کیا ہو گیا, بڑھ گیا. سنیے پھر ہم کیا ہے تراویح کا 20 رکعت نماز کے جماعت میں پڑھتے ہیں, تو یہ بھی اللہ نے ایک کام کیا, سوچا تو یہ رمضان کا مہینہ میں ڈال دیا. اس میں 2 کام سیٹنگ ہو گیا. پھر فطرہ کا مسئلہ ہے, یہ بھی رمضان مہینہ ہے. سال میں 2 عید ہے. ہاں بولتا ہے کہ یہ رمضان میں اتنا تکلیف کرے گا تو ٹھیک ہے, اللہ نے وہ سوچ کے پھر لگا دیا کہ یہ خوشی کا دن لگا دو. ہاں رمضان کے مہینہ کے خلاف بعد کو لگا دو, تو یہ رمضان مہینہ میں عید بھی ایک آ گیا. پھر بیتر کی نماز رمضان کے بغیر ہم اکیلا پڑھتے ہیں, رمضان میں جماعت میں پڑھتے ہیں یہ. پھر دیکھیے جنت ہے جہنم ہے, جہنم کا دروازہ بند کر دے گا. اللہ نے سوچا کہ کون سا مہینہ میں کرے گا, ٹھیک ہے ڈال دو رمضان میں. رمضان کے مہینہ میں وہ جہنم کا دروازہ بند کر دیا, پھر جنت کا دروازہ کھول دو کہ یہ کون سا مہینہ میں کرے گا, کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر دو. یہاں اللہ نے اس میں, تو رمضان کے مہینہ میں بہت کچھ ہے. تو اتنا کام, فضیلت کا کام, دین کا عبادت کا کام رمضان کے مہینہ میں جب آیا, پھر اللہ نے سوچا ابھی کیا بھی کہ ان کے لیے تھوڑا آفر بھی دینا ہے. ہوتا ہے کہ جو کام کرے گا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو ابھی دیکھیے رمضان کا مہینہ میں جو ایک فرض ادا کرے گا اس کو رمضان کے بغیر 70 فرض کا برابر ثواب دے گا. سبحان اللہ. اور جو ایک نفل ادا کرے گا یہ نفل کو بڑھاتے فرض کا برابر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے رمضان مہینہ. سب بولے الحمدللہ. یہاں جو بھائی ہیں سب بھائی انشاءاللہ پورا رمضان کا روزہ رکھا ہے انشاءاللہ. بولے الحمدللہ. بھائی عجیب ہے, میں خود دیکھا ہے. میری بیوی ایک ساتھ جا رہا تھا دن میں, دیکھا ہے پانی پی رہا ہے, داڑھی ہے. پھر مجھے بولا کہ یہ مسلمان کو لگ رہا ہے شاید روزہ ٹوٹ دیا. آپ کو معلوم ہے نا بہت بھائی روزہ ٹوٹتا ہے نا. تو ہم یہاں الحمدللہ سب بھائی رمضان کو روزہ رکھا ہے. کون توفیق دیا بولیے؟ پہلے ہے دل میں روزہ کا محبت دیا. پھر آپ کو یہ کمپنی شاید اچھا ہے کہ وہ ایسا کام آپ کو دیا جس سے روزہ رکھنے کا توفیق بھی ہو جائے نا, اس لیے پھر بولے الحمدللہ. ایک بات تو بہت بڑی بات ہے کہ رمضان کا روزہ ہم سب نے رکھا ہے, اللہ نے ہمیں توفیق عطا کیا. دوسری بات ہے کہ تراویح جو ہے نا, تراویح کتنا رکعت پڑھا ہے ایسا بولے الحمدللہ. امام صاحب مجھے فون کیا کہ ساتھی بھائی تو کچھ ایسا ارادہ کر رہا ہے کہ 8 رکعت پڑھے گا. میں بولا نہیں چلے. الحمدللہ میں عمل کر کے پھر آپ کو بتا رہا ہوں. آئندہ میں جو ہوگا وہ معلوم نہیں ہے, گناہ سے توبہ ہم کیا لیکن ہو سکتا ہے ہو جائے گا اس سے. لیکن رمضان میں قطر میں 15 سال ہو گیا الحمدللہ. میں تراویح نہیں چھوڑتا ہوں. مسجد میں 8 رکعت ہوتا ہے, پھر میں گھر میں جا کے پھر باقی پڑھتا ہوں اور ختم بھی الحمدللہ کرتا ہوں. ہاں کبھی کبھی پورا مہینہ میں 1 دن 2 دن ایسا ہوتا ہے نا, دن میں تھوڑا وہ کرتا ہے کہ آج تھوڑا 2 رکعت. پھر میری بیوی نے اتنا مضبوط ہے, بولتے نہیں آپ اہل حدیث نہیں بننا ہے, لازم آنا بھی بننا ہے. وہ آپ 20 رکعت پڑھے نہیں چھوڑے گا. وہ 10-15 منٹ پوچھتا ہے کہ آپ باقی 2 رکعت پڑھا. میں ہنستا ہوں تو نہیں چلے گا, لازم پڑھنا ہے. ایسا ہے تو آپ کے پاس ایک دیندار بیوی مل جائے گا تو دونوں مل کے کہاں جائے گا بولے نا, جنت. اس لیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا تو سامان ہے, ہاں وہ
सामान से फायदा उठाना है, इस्तेमाल करना है। बांग्ला में बोलता है भूख करना है ना, बोलता है सबसे अच्छा सामान है बीवी। कौन सा बीवी? खूबसूरत नहीं है, मोटा नहीं है, वो नहीं है, पैसा वाला नहीं है, छोड़ो, बस वो बीवी जो जिम्मेदार है। आपको थोड़ा दिन में आज का और मोबाइल में खराब देखिए, बीवी बोलेगा कि ये छोड़ो, किसी के साथ झगड़ा होगा, बीवी बोलेगा कि नहीं मिल जाओ अच्छा है। हाँ, किसी का वो पैसा धोखा देना है, बीवी बोलेगा नहीं है धोखा नहीं देना, ये अच्छा काम नहीं है, छोड़ो। ऐसा वाला दीनदार बीवी आपको मिल जाएगा तो जन्नत मिलेगा। तो फिर बात ये है, सब भाई इंशाल्लाह ताला भी 20 रकात पढ़ा है ना। अभी दुनिया ये इंशाल्लाह थोड़ा आहिस्ता आया, क्यों? शायद सब 20 रकात नहीं पढ़ा, सब भाई पीछे जो भाई है सब 20 रकात ताला भी पढ़ा है इंशाल्लाह नहीं, फिर भी आहिस्ता, मुश्किल यही है, हम नियत करेंगे इंशाल्लाह। ये भी एक मुश्किल काम है कि अभी जमाना आया बस वो 8 रकात पढ़ने का अपने दिन में वो करते हैं। क्या भाई, रमजान में मैं जो 8 रकात पढ़ता है मैं उनको गाली नहीं दूंगा, बस मैं मेरा तरीका मैं आपको बताऊँ, ठीक है 8 रकात पढ़ता है, आप बोलेगा नहीं चलेगा वो तो अलग बात है, चलेगा नहीं चलेगा मुश्किल है। लेकिन अगर रमजान में हर काम 70 गुण ज्यादा मिल जाएगा तो आप 20 रकात पढ़ेगा, कोई खसारा तो आपको नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि 20 रकात बेदात है। अच्छा अभी बात जाहिर में एक बात बताओ, आपको यूट्यूब में देखेगा तो सब कुछ मिलता है। अभी जो बांग्लादेश में अहले हदीस भाई हैं वो बोलते हैं 8 रकात, 20 रकात नहीं है। क्या अहले हदीस के कुछ भाई हैं ना कि वो भी 20 रकात मानता है, देखा है आप, देखा है ना, तो फिर क्या मुश्किल है। फिर बात किया है कतर में भी बहुत मस्जिद है भाई, कतर में बहुत मस्जिद है जिसमें 20 रकात चलता है, आप जानते हैं? कोई जानता है? आप 2 नंबर ठीक है, आपको नहीं है। कतरी मोहल्ला में भी 20 रकात चलता है। कहाँ 20 रकात चलता है भाई? कतरी मोहल्ला में भी 20 रकात चलता है। तो 20 रकात ऐसा नहीं है, बेदात है, ये कभी भी नहीं बोलना, ठीक है? हाँ, वो 8 रकात हम वो नहीं बोलूंगा कि बस ठीक है। इंशाल्लाह आइंदा साल, ये साल में जो भाई 20 रकात नहीं पढ़ा, आइंदा साल इंशाल्लाह ये नियत करना है कि हम अगर रमजान अल्लाह हमें मिलाएगा तो हम इंशाल्लाह रमजान में कितना रकात तरावी पढ़ूंगा, ये सब नियत में दोस्त सब बोले इंशाल्लाह कितना रकात, फिर बोले कितना रकात, 8 रकात मुश्किल है। हम गाली भी नहीं देंगे लेकिन हम अपना फायदा के लिए कितना रकात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, लास्ट में और एक लास्ट में एक टाइम तो है शायद मालूम है, एक बात है, कोई आलिम को गाली नहीं दे रहा, ये जुबान को ये वादा करेंगे इंशाल्लाह उलमा किराम को गाली देंगे। आप देखा कि ये आलिम ऐसा कर रहा है, छोड़िए, आपका जुबान कहेगा कि क्या फायदा आपको एक आलिम को गाली देना। हाँ, आप चुप रहना, वो गाली देता है चुप, बस अपना जुबान कहेगा कीजिए, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर अमल करता हूँ, ये फायदा है मेरा, वो उसको अहले को ये जहन्नम में भेज देना, ये अभी यूट्यूब पे हम सबको जहन्नम में भेज देता है जो 20 रकात वाला है, देखा है? बोलता है टोंगी में, मैं खुद सुना शेख अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ का बयान, मैं खुद सुना कि टोंगी में जो जाता है सब जहन्नम में जाता है, टोंगी में जो हाथ उठाए दुआ में सब जहन्नमी है। आप सुना है कभी ये बयान? आप सुना? ये बात अच्छा बात है, आप आलिम हैं, आप शेख है, ठीक है, ये क्या बोलेगा कि पूरा अरब लोग भी जाता है ना वहाँ, क्या सब जहन्नम में जाएगा? हमारा हसीना मसीना बांग्लादेश का जो सियासत का जो आदमी है, राजनीति का, सब हाथ उठाता है मोहब्बत से ना, तो हम जहन्नम में क्यों भेज देते हैं? ये क्या इतना बड़ा गुनाह का काम है, दुआ में हाथ उठाएगा, इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, जो करेगा तो जहन्नम में जाएगा, ऐसा कभी भी अच्छा नहीं है ना। ये तरीका को छोड़ देना, समझ रहा है भाई? तो मैं पहले ही बोल दिया उलमा किराम को क्या करना है भाई, फिर बोलिए मोहब्बत करना है। गलती अगर हो गया, ये गलती पकड़ना और गलती के लिए गाली देना हमारा काम नहीं है, समझ रहा है भाई? ये फितना है, बड़ा फितना है। जुबान का झगड़ा नहीं करना कभी भी किसी के साथ, आलिम के लिए, आलिम का इमाम का झगड़ा नहीं करना। अपना मोहल्ला में जाएंगे, ये मोहल्ला में ये अलग होता है, वो अलग होता है, ये छोड़ देना है, ये दुनिया में बहुत बड़ा फितना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं अमल कर रहा हूँ, सबको दावत देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ सबको मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह, रिश्तेदार के साथ, आत्मीय स्वजन, दोस्त बंधु जो है सब, किसी के साथ अगर मेरा कुछ झगड़ा हो गया, आज यहाँ नियत करना है कि मैं माफ कर दूंगा, बोले इंशाल्लाह। मोहल्ला में मस्जिद में जाके थोड़ा एक बात को लेके दूर
ग्रुप हो जाता है ना, कभी भी ग्रुप में नहीं जाना है, समझ गया। आप पैसा थोड़ा ज्यादा दिया, मेरी बात नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं, ऐसे ये छोड़ देना है। हर जगह ये हो रहा है, फैमिली में, फैमिली मस्जिद में ये छोड़ देना है। अच्छा ये बात किया, तो रमजान महीना जो दिया अभी हिसाब लगाना है, ये बात है। रमजान का क्या करना है बोलिए, हिसाब लगाना है। पूरा रमजान में अगर कुछ गुनाह हो गया तो तौबा करना है। क्या करना है, अगर कोई नेक काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। फिर लास्ट में ये और एक बात है, हम अगर कोई गुनाह कर लिया तो हम डरते हैं कि गुनाह मुझसे हो गया है, या फिर इमाम साहब को बोलता है कि अभी तौबा करना है तो क्या करना है, हम गुनाह से डरते हैं ना। लेकिन ये बयान ये किताब में लिखा है, रमजान के बाद सहाबाए किराम हमसे अच्छा आदमी है ना, सहाबाए किराम अच्छा है ना, तो था कि ये सहाबाए किराम अल्लाह का नबी का प्यारा सहाबा है। ये रमजान के बाद 6 महीना तक रमजान का वफात का जो इबादत मिला था 70 गुण वफात, इसको अल्लाह का दरबार में कबूल होने के लिए 6 महीना तक रोता था। सुभान अल्लाह। हम तो एक गुनाह कर लिया तो परेशान हो जाता है, बोलता है सहाबा करम गुनाह से परेशान नहीं होते थे, क्यों? बोलते कि गुनाह के बाद बस या रब मैं तौबा कर लिया, ये तो यकीन है कुरान में है वो ताला गुनाह माफ कर देगा। लेकिन ये अल्लाह ने ऐलान किया, लेकिन इबादत करने के बाद तुम्हारा इबादत कबूल हो गया, ये पूरा कुरान में नहीं है, पूरा हदीस में नहीं है। बोलता है कि किसका इबादत कबूल होगा नहीं होगा इसका इल्म किसके पास है? बात मेरा समझ रहा है ना। आप ऑफर वो कंपनी में ओवरटाइम करते हैं ना, फिर सैलरी मिलता है, कोई कंपनी अच्छा नहीं है, तो मैं मेरा मस्जिद में जो बांग्लादेश का भाई होता है मैं बात करता हूँ, होता है कि मालूम नहीं है इस महीना में तो इतना घंटा ड्यूटी किया पूरा ये सब आएगा नहीं आएगा या कंपनी करेगा, ये डरता है। लेकिन वो जो असल ड्यूटी है उसका कोई डर नहीं है। होता है कि ओवरटाइम जो किया पूरा देगा नहीं देगा, तो इसका डर होता है। बात है ना। तो ऐसा ही है कि हम जब वफात का वो काम रमजान में किया, इसके लिए क्या करना है, डरना है। क्या आज तक कोई आलिम ऐसा बोला है कि हमारा इमाम साहब यहाँ 3 दिन तरावी पढ़ा और वो बोला कि आप 3 दिन तरावी पढ़ा है ना, वो आपका तरावी कबूल हो गया, ऐसा कभी सुना है? हम सदका करता है, ज़कात देता है, आदमी को खिलाता है, लेकिन 100 मिलेगा नहीं, 100 इसका ये मिलेगा, लेकिन मेरा मिला नहीं मिला ये तो कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन बात याद समझना है, कबीरा गुनाह कर लिया, गुनाह करने के बाद दिल से तौबा किया, तौबा गुनाह माफ कर देता है, ये तो कुरान में है, ये हदीस में नहीं है। समझ गया? ये यकीन है। अभी बात समझ रहा है मेरी बात? कितना टाइम है? अच्छा, तो मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहा है ना भाई? समझ रहा है क्या भाई? गुनाह किया तो तौबा करेगा, माफ हो जाएगा, ये गारंटी है, कुरान में है, हदीस में है। लेकिन ये रमजान के में जितना नेकी किया कबूल हुआ नहीं हुआ इसका तो गारंटी नहीं है ना, इसलिए दुआ करना है 6 महीना। कुछ बोले? अच्छा, ये एक बात अभी आने वाला, अभी इख्तिसार करूंगा। ये जो जब चांद आ जाएगा ना, चांद का खबर जब हो जाएगा मगरिब के बाद, उस वक्त आपका एक अमल करना है। चांद के बाद से लेके मगरिब के बाद तो खबर नहीं होगा, कुछ देर के बाद जब खबर हो जाएगा उसके बाद से एक इबादत है, सबके लिए याद रखना है। बोले मेरे साथ, बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तो सबको याद है ना, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये उस दिन बोलता है कि नफल छोड़ो, कुरान छोड़ो, जिक्र छोड़ो, खाना खिलाना छोड़ो, वो तो करेगा मुश्किल है। सबसे अच्छा इबादत ये है, ये जिक्र करना है। जब तो खबर हो जाएगा कि कल सुबह ईद है, उस वक्त से लेके ईद का मैदान में, ईदगाह में जब इमाम खुद आ जाएगा उस वक्त तक यही सबसे अल्लाह के नजदीक प्यारा इबादत है। समझ गया? हाँ, कुरान भी अच्छा है, लेकिन उस दिन का उससे बड़ी है, इसलिए ये सब करेंगे इंशाल्लाह। ये बात समझ गया ना? जब चांद का खबर हो जाएगा ईद का, उस वक्त से लेके कोई कितना मर्तबा करेगा ये नहीं है, बस जितना अच्छा है।
सो गया, सोने के पहले सो रहा है, सो गया, बस अल्लाह 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 बोलते बोलते उठने के बाद, हमाम से निकलने के बाद, फिर मस्जिद में जाने का टाइम में, ये एक काम है। और अभी आगे फितरा का मसला ना, सब जानते हैं ना, फितरा सब अदा कर दिया। हाँ, फितरा का तो एक फितना अभी बांग्लादेश में होता है, हम पैसा से अदा करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि पैसा से अदा नहीं होगा। ये गलत बात है। सब भाई मार्केट में जाता है ना, फिर मार्केट में एक सुंदूक लेके बैठता है आदमी, देखा है? वो आदमी फितरा का भी पैसा लेता है, देखा है ना? एक कूपन होता है, कूपन, उसमें वो कतर लोग पैसा देता है। तो अगर फितरा पैसा से जायज नहीं होता तो ये कतर में चलता है, नहीं चलता है। तो हमारा बांग्लादेश में जाके जो अहले हदीस भाई हैं हमारे, मैं एहतराम से बोलता हूँ, वो लोग अभी हमारा जो हनाफी मजहब है उनको गाली दे के बोलता है कि फितरा पैसा से अदा नहीं होगा, ये शरीयत में नहीं है, ये बेदात है, ये हदीस में नहीं है, ये गलत बात है। आप अरब में देख रहा है, नहीं देख रहा है? ये बात है, बस सब फितरा पैसा से अदा करेगा, इंशाल्लाह मुश्किल में हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक बात है। तो तीन नंबर बात है ईदगाह में, इख्तिसार बात को टाइम नहीं है, ईदगाह में जाके याद रखना है बहुत भाई, ईदगाह में जाके अल्लाह अकबर नहीं, ईदगाह में ईद की नमाज के पहले नफल नमाज क्या नहीं है, नहीं है, याद रखना है, ठीक है? ईदगाह में कोई नफल नमाज नहीं है, फजर के बाद से लेके ईद की नमाज तक कोई नफल नहीं है, मकरूह है। पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मकरूह हो जाएगा। तो वहां जाने के बाद बस सीधा बैठ जाएगा, अल्लाह अकबर जो यहाँ माइक से बोलता है ना, वो बोलता रहना है अपना दिल से, थोड़ा अपना आस्था से। अच्छा, एक बात है, अभी ये लास्ट बोलूंगा, वो नमाज का थोड़ा तरीका बता दूंगा, क्यों ये लंबा नहीं करोगे, है ये जरूरी है। हर आदमी जाके ऐसे ऐसे करता देखता है, करता है ना। नमाज में एक बात याद रखना है कि हर तकबीर में हाथ उठाना है, याद एक बात है। क्यों? मुझे बहुत भाई फोन करता है उस दिन कि हाथ उठाना ना नहीं उठाना, इसलिए सब याद रखना है। जो अल्लाह अकबर बोलता है ना इमाम साहब, उस वक्त हम क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे, फिर उठा के हाथ क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात है, हमारा बांग्लादेश में पहली रकात में 3 तकबीर ज्यादा और दूसरी रकात में 3 तकबीर ज्यादा, लेकिन यहाँ मजहब हम्बली मजहब है। यहाँ कौन सा मजहब है? हम्बली मजहब। हम्बली मजहब में पहले 6 तकबीर और दूसरा रकात में 5 तकबीर, कितना हो जाएगा? 11 तकबीर ज्यादा। और कोई बोलता है 7 और 5, मुश्किल नहीं है। तो हम उनके साथ ये बढ़ाएंगे, यहाँ जो जब है हम उन पर अमल करेंगे। बांग्लादेश में जाके ये नहीं बोलना कि कतर में 6 और 5 है इसलिए हम वहाँ नहीं। बांग्लादेश में जो करता है वो भी सही है, कतर का लोग ये मानता है। हम कौन सा मजहब का है? हम हनाफी मजहब का। सब बोले हम कौन सा मजहब का? मैं मस्जिद में हमारे इमाम साहब गया है, मेरे कतरी मोहल्ला है ना, 15 साल से पढ़ रहा है, मैं हाथ नहीं उठाता हूँ, आमीन दुरुस्त नहीं बोलता हूँ, फिर तकबीर भी चलता है हमारा, वो जानता है, तो फिर भी हमारा पीछे नमाज पढ़ता है। तो अगर गुनाहगार आदमी होता तो हुकूमत हमको मुल्क भेज देता, ऐसा है ना। तो याद रखना है, यहाँ का जो तकबीर ये करना है। तो लास्ट में ये बात है, क्या क्या अच्छा याद रखेगा। अब बात क्या है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नियत तो किया ना। अब ये जो काम करेगा, हदीस में है मन हम्मा बिहसना फलहु अजरुहा व इल्लम यअमल बिहा। जो अच्छे, ये बुखारी शरीफ का हदीस है, जो अच्छा काम का नियत करता है वो काम अगर नहीं किया फिर भी वो काम का बराबर सवाब मिल जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। अब अभी ये रमजान का महीना है, फिर तो 70 गुण ज्यादा मिल जाएगा। तो अच्छा नियत तो इंशाल्लाह करेंगे ना। अभी आने वाला ये छुट्टी है, छुट्टी में एक दिन का मेहनत है। इधर जितना भाई है, आपको दीन कैसे मिला है थोड़ा बोलिए तो। वो जो आलम साहब है, वो आलम सिंह के घर में बैठा था, इसलिए हम इतना भाई यहाँ दिन में आ गए, ऐसा है? नहीं, ये आलम ने काम किया, इमाम साहब काम किया, भाई काम करता है, मेहनत से काम होता है। तो ये दोनों सब सौंप ले जाएगा, मुश्किल है। आपको भी ये सौंप लेना है, नहीं लेना है? सबको तो जाना है दुनिया से, बोलता है ये सदका जारिया है। मैं एक मिसाल पेश करो, एक आलिम साहब बोलता है कि हमारा नबी का तो इंतकाल हो गया, बस इंतकाल जब होता है दुनिया से तो चला गया, हाँ, जब चला गया नेक काम करने का रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन क़यामत तक कोटि कोटि आदमी आएगा, जितना सीधा जितना तिलावत करेगा सबका सवाब मिलेगा, जो दावत का काम करता है। समझ गया? हम घर में बैठ के ऐसे करे फायदा नहीं है। दावत का काम जो करेगा वो उसके साथ, उसके बाद
जितना भाई, जैसे एक आलिम साहब बोला है कभी दुनिया में आप निकल गया तबलीग में मसलन, हाँ एक दिन निकला 3 दिन के लिए, बोलता है कि पूरा दुनिया में जितना दावत का काम चल रहा है सबका सब आपको मिलेगा। बोले सुभान अल्लाह। क्यों है? हाँ अच्छा, तो इंशाल्लाह नियत है ना? हमारे इमाम साहब इंशाल्लाह जाएंगे, इंशाल्लाह इमाम साहब के साथ सब इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह क्या थोड़ा जोर से बोले ना इंशाल्लाह। हाथ थोड़ा उठाए ना, खड़ा हो जाओ लगी। अच्छा सब भाई भी खड़ा हो जाइए, मुश्किल है 100 मिलेगा 100 मिलेगा भाई। हाँ अभी मेहनत शुरू हो गया, अल्लाह सबको कबूल करे बोले आमीन, अल्लाह सबको तौफीक अता करे बोले आमीन, अल्लाह सबको दाई बनाए बोले आमीन। अभी बैठे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा इमाम साहब जो बात किया है, हर बात पर अमल करना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको सुनने से ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमा। टाइम बहुत कम है, इंशाल्लाह दुआ हो जाएगा। अभी हमारा कंपनी का सब आदमी मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इफ्तार का इंतज़ाम किया। हमारा ऑफिस का आदमी भी आया है, हमारा साहब, हमारा इंजीनियर साहब भी आया, हमारा कैंपस भी है। हमारे साथ ही बहुत आदमी मेहनत कर 3 दिन से मेहनत कर रहा है। मेहनत का बात हुआ है, अच्छा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बुरा भी हो जाएगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? अल्लाह आदमी लोग अच्छा करने की कोशिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको के साथ खाएगा। सबके लिए दुआ करना है, जो साथ मेहनत किया सबके अल्लाह ताला ने मेहनत में और मेहनत का जो बरकत है आता फरमा। सब अस्तगफिरुल्लाह اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد। अगर रोना नहीं आया फिर भी रोने का कोशिश करना है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अल्लाह या अल्लाह अल्लाह मोहब्बत से अल्लाह को बुलाना है। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, तुम्हारे दरबार में हम हाथ उठाए। अल्लाह हम सबका गुनाह को तुम माफ कर दो। अल्लाह हमारा सबका गुनाह तुम माफ कर दो। अल्लाह तुम तो बहुत मेहरबान है, रहम वाला है। अल्लाह तुम करम वाला है, तुम देने वाला है, तुम माफी करने वाला है, तुम रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह या अल्लाह, हम मिस्कीन हैं, हम फकीर हैं। या अल्लाह गुनहगार है, हमारा हाथ खाली है, कुछ नहीं है। अल्लाह तुम्हारा दरबार में हाथ उठाए। या अल्लाह हमको वापस ना दो। या अल्लाह खाली हाथ से तुम हमें वापस ना दे। अल्लाह तुम हमारा हाथ को, हमारा दिल को, जो दिल में चाहता है सब पूरा कर दो। या अल्लाह हमारा दिल का जो तमन्ना है सब तुम पूरा कर दो। या अल्लाह जो अच्छा दिल का तमन्ना है, जरूरत है, सब तुम पूरा कर दो। या अल्लाह पूरा ये रमजान के अल्लाह रमजान में जितना नेक कमाई करने का तौफीक अता के। या अल्लाह इस नेक को तुम कबूल करो। या अल्लाह हमारा नेक अमल को तुम कबूल करो। या अल्लाह या अल्लाह हमारे नेक काम को तुम कबूल करो। या अल्लाह आज का जो इंतजाम किया, जो भाई तकलीफ किया, अल्लाह बहुत तकलीफ हुआ अल्लाह, जितना जो भी दिन से अल्लाह भाई को तुम कबूल करो। या अल्लाह उनका गुनाह को माफ करो। या अल्लाह उनका वसीला से आज का जो ये दिन का इज्तिमा हुआ है, दिन की बात हुआ है, इसके सब का सवाब तुम भाई को भी दे दो। या अल्लाह इंतजाम करने वाले भाई को भी तुम उसका सवाब और बदला दे दो। या अल्लाह रमजान तो जाएगा। अल्लाह पूरा रमजान में हम जैसे इबादत किया, पूरा साल ऐसा इबादत करने के लिए तौफीक अता करो। अल्लाह रमजान जाएगा। अल्लाह हम फिर रमजान के बाद तुमको भूल ना जाए। अल्लाह तौफीक अता करो। रमजान में जैसे पाबंदी के साथ नमाज अदा किया है, पूरा साल ऐसा पाबंदी के साथ नमाज अदा करने के लिए तौफीक अता करो।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जी साथी इंशाल्लाह आराम से बाहर का खुली इंतजाम है, आराम से पीछे पीछे दौर से तीनों दौर से निकालना है सर, आराम से जाइए, किसी को तकलीफ नहीं देना है इंशाल्लाह. सबका बंदोबस्त